class in MCOM Analysis of Statistics. The first chapter is about the time series analysis. So today the topic that we will study, it is the time series analysis. What is the concept of time series analysis? And we will talk about the various objectives, functions and uses of this method in statistics. Let us start from the meaning of the time series analysis, what actually the time series analysis stands for. Time factor is a continuous dynamic affair and the sequence of fluctuations goes on in economics, business, political, social and various other areas with chronological movement. टाइम सीरीज एनालिसिस बेसिकली स्टूडेंट्स स्टडी करता है जब हमारी इकोनॉमिक्स, बिजनेस, पॉलिटिकल, सोशल या जो अदर एरियाज होते हैं वहाँ पर किसी तरह का एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी चेंज आता है. सो यू कैन से a set of data that is depending on the time and a series of values over a period of time. In short, we are studying the fluctuations. These fluctuations affect various economic aspects such as trade, commerce, industry, employment, price, etc. इन fluctuations का, इन changes का definitely किसी भी industry, commercial activity, एम्प्लॉयमेंट या प्राइस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. टाइम सीरीज एनालिसिस का स्टडी एरिया कवर यही चीज़ करता है कि द स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ मूवमेंट linked with time factor, and it have become very useful, and for this purpose the technique of analysis of time series is used. So you can say कि जब भी हमें certain time period में हमारे इकोनॉमिकल या किसी भी प्रकार का सोशल, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस या इंडस्ट्रियल चेंजेस को स्टडी करना होता है तब इस एनालिसिस का यूज़ हम करते हैं. द टाइम सीरीज एनालिसिस refers to such a series in which statistical data are presented on the basis of time of occurrence or in chronological order. The measurement of time, अगर हम टाइम मेजर करने की बात करें तो इट मे बी आइदर ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर और इवन मिनट्स और सेकेंड्स. बेसिकली जो टाइम का मेजरमेंट यहाँ पे रहता है वो हम किसी भी ईयर को मान के चल सकते हैं, मंथ में कोई भी चेंजेस हमें चेक करने हैं, या फिर मेजरमेंट हम वीक का कर सकते हैं, डेज, आवर्स और इवन मिनट्स और सेकेंड्स. टेक्निकली in a time series the time factor is an independent variable. So you can say कि जब हम time को अगर लेंगे तो वो independent माना जाएगा और जो other factors हैं वो उस पर dependent variables होंगे. So in the form of statistical data they are representing the movements related to the time factor. Well, the time series is also termed as historical series or chronological series. आपने जो भी प्रोडक्शन, सपोज हमने वेरिएबल्स, अगर सपोज यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए गए हैं, प्रोडक्शन है किसी स्टील का या पर कैपिटा इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम, प्राइस ऑफ टोबैको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सपोज दीज ऑल आर द वेरिएबल्स. दीज वेरिएबल्स आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वी हैव टू स्टडी these variables according to the time factor because we are taking the time factor as an independent factor. तो उन independent factors पर, independent factors पे जो भी direct indirect effect पड़ता है वो time series analysis cover करता है. So in short, time is act as a device to set of common stable reference point. Secondly, in time series, time act as an independent variable to estimate the dependent variables. So, a set of data that is depending on the time is called a time series. जहाँ पर हम certain time period पे जो भी हमारा वेरिएंसेस हो रहे हैं, जो भी हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके कॉज ऑफ इफेक्ट को इम्प्लाई करते हैं. Now, in short students, there is the mathematical presentation of time series where we are taking the y equals to ft. Mathematically जब आप इसे express करते हैं तो हम time series को, जो भी हमारा ट्रेंड है, हम उसे फैक्टर्स और ट्रेंड के थ्रू शो करते हैं. So, our time series is a set of observation taken at specified times, usually at equal intervals. Basically, a time series is a sequence of values
of the same variate corresponding to successive point in time. तो मैथमेटिकली आपने वैल्यूज़ को y के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हैं, y1, y2 एंड सो ऑन, और जो भी टाइम है, टाइम को हम शो करते हैं थ्रू t1, t2, thus y is a function of t, and symbolically when we present the formula it is y equals to ft. Now next is what are the causes of variances in the time सीरीज डेटा, यानी वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनसे टाइम सीरीज डेटा में इतना डिफरेंस आता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कस्टम्स, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, सीजन. आपका जिस तरह का सोशल कस्टम होगा, जैसा सोसाइटी में चेंजेस होंगे, जैसे वहाँ वैल्यूज़ होंगी या फेस्टिवल्स होंगे, डेफिनेटली आपके वहाँ डिमांड्स में, सप्लाई में उस तरह का चेंजेस आते रहेंगे. सो यू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर evaluating the performance through this analysis of time series. बेसिकली आप हमारी सोसाइटी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें हैपन होती हैं, या फिर सीजनल जो भी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, या फिर राइज कर रहा है या फॉल कर रही है डिमांड. द 4 phases ऑफ बिजनेस: प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी. ओके, हियर whenever the any type of business is facing any type of cycle throughout his life, तो वो 4 phases में अगर वो प्रॉस्पेरिटी को टच कर रहा है, डिक्लाइन को टच कर रहा है, या जो भी स्टेज में है, डिप्रेशन में या रिकवरी में, डेफिनेटली टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू हम उन चेंजेस को थॉरोली स्टडी करते हैं. बेसिकली यू कैन से जो भी साइक्लिक फ्लक्चुएशन हो रहा है किसी भी बिजनेस में, दैट मीन्स पीरियडिकली जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, कोई भी बिजनेस जो भी 3 to 10 ईयर्स में पीरियड में जितना भी अपने टाइम पीरियड में वेरी कर रहा है, उसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू स्टडी करते हैं. देन नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, एपिडेमिक, फ्लड, ड्राउट एक्सेट्रा. सी नेचुरल कैलेमिटीज़ के वजह से बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस आते हैं. तो डेफिनेटली सर्टेन टाइम पीरियड में क्या चेंज हुआ, उसका क्या इफ़ेक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ा, या आपके सोशल चेंजेस में पड़ा, या फिर आपके पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कैसे उससे इफ़ेक्ट करी. सो ये भी टाइम सीरीज एनालिसिस का एक कॉज कहला सकता है. पॉलिटिकल मूवमेंट, चेंजेस, वॉर एक्सेट्रा. जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स उसमें होते हैं, जो भी चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, या फिर वॉर, किसी तरह का युद्ध अगर हो गया, तो डेफिनेटली इससे हमारे इंटरनल और हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इकोनॉमी का इफेक्ट करता है. सो इन शॉर्ट यू कैन से स्टूडेंट्स, दीज आर द सर्टेन कॉजेज जो टाइम सीरीज डेटा में वेरिएशंस क्रिएट करते हैं. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस? इन वेरी शॉर्ट लेट अस टेक दीज. दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल फॉर बिजनेस फोरकास्टिंग. जब हमें बिजनेस एनालिसिस करना है, फोरकास्टिंग करनी है, द नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड फ्लक्चुएशंस on the basis of analysis of time series makes it possible to forecast the future behavior of the variable under study. आप कह सकते हैं the main objective is analyzing time series is to understand, interpret and evaluate changes in economic phenomena in the hope of more correctly anticipating the course of the events. यानी on the basis of time series analysis students, businessmen, administrators and planners अपने फ्यूचर पॉलिसीज ड्रॉ करते हैं, अपने टारगेट्स को प्रिपेयर करते हैं और अपने फ्यूचर्स प्लान को एक्टिव करते हैं. देन सेकंड वुड बी द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर. अगेन स्टूडेंट, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज. एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल. यानी किसी भी सर्कमस्टांसेस या क्या कॉजेज रहे, या फिर उस डेटा में मूवमेंट किस वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुआ. सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल इन द अरेंजमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल. सो जहाँ पर आपका पास्ट बिहेवियर आपको स्टडी करना है, तो आप वेरिएंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिहेवियर को वेरिएबल्स के कहीं ना कहीं तक, काफ़ी एक्सटेंट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कुड बी इट कैन फोरकास्ट फ्यूचर एक्टिविटीज, प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस. अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पर ट्रेड साइकिल्स आप स्टडी करते हैं, जहाँ पे आप कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं. यू कैन इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस यू कैन इवेलुएट द करंट अचीवमेंट्स ऑल्सो.